Resume recording. So what we are discussing is, I will just rephrase because we have just started the recording now. Okay. We are Okay. discussing question number 45. There is a reversal of temperature in the atmosphere at 8 kilometers because. So reversal of temperature in atmosphere at 8 kilometer because. The correct option is lapse rate reverses at poles and becomes negative. So what we are going to do is find the textbook line from where we got this reference. So I want you to open page number 1, and from page Mm, number 1 quickly start looking for the word lapse rate. I don't think it's there on page number 1 or 2. I don't even think it's on there. It's there on page number 3. Let's quickly check. Uh, so, so you remember the graph that I had showed you, page number 4? You yes. see, if we see carefully, let me share that screen with you. Just a sec. Can you see the textbook on screen? No. Yes. You can now, right? Yes. Very good. What was your friend's name again? Taushik, Yes. जिसका नंबर आपने मुझे दिया था बात करने के लिए. हाँ. ये सॉफ्ट कॉपी मुझे तौशिक ने भेजी है. अच्छा. मैंने उससे मांगी थी. मैं बोला मुझे दे दे जो भी मटेरियल है. सो उसने मुझे ये भेजा था. नहीं तो अपन को खुद को स्कैन अच्छा. अच्छा. करवानी पड़ती है. हाँ, बहुत हेल्पफुल है बंदा. So page number 4, I'm talking about this. So this line here, Mm, okay, this line here is mean sea level. Can you see? mm, yes. पक्का ना स्क्रीन पे देख पा रहे हो? हाँ. हाँ. सो टेम्परेचर का लाइन दिया है. ये जो पॉइंट है टेम्परेचर का, ये जो पॉइंट है, ये 15 डिग्रीज का पॉइंट है. ये जो Mm, पॉइंट है वो -54 का है. मतलब -54 से राइट जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और लेफ्ट जाएंगे तो टेम्परेचर और कम हो रहा है. यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है हाँ. ये -90 है. हाँ. ठीक है. तो इसका मतलब अगर मैं ऐसी लाइन बनाता हूँ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर कम से ज्यादा हो रहा है कि माइनस से प्लस हो रहा है. मैंने सेटलेस हो रहा है. हाँ, क्योंकि ये माइनस है. देखो, अगर मैं ये लाइन बनाता हूँ ऐसी, हाँ, मैं ये लाइन बनाता हूँ, तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये? -90. और कहाँ पे जा रही है? देखो, +15 भी क्रॉस हो रहा है, +20, 30. +20, +30. तो टेम्परेचर बढ़ रहा है. समझे? Mm, ये लाइन क्या बता रही है? कि टेम्परेचर बढ़ रहा है. आर यू गेटिंग इट? हाँ. Yes sir. कहीं पे भी कंफ्यूजन है, मुझे पूछना है आपको क्वेश्चन. ठीक है? हाँ. हाँ में हाँ नहीं मिलाना है बस. नहीं नहीं. सो So where do all aircrafts fly? Troposphere, right? ट्रोपोस्फियर, यस. And troposphere poles पे छोटा होता है. 8 to ट्रोपोस 10. ट्रोपोस्फियर के बारे में देखो, यहाँ सब लिखा हुआ है. टेक्स्ट बुक खोलो अपनी. ट्रोपोस्फियर हाँ. दिखाओ मुझे, कहाँ है ट्रोपोस्फियर? विच पेज नंबर? क्विकली टेल मी द पेज नंबर. I guess it's number 1. No, it's atmosphere. Troposphere, troposphere. It's page number 5. करेक्ट. सो क्विकली चेक. What is the height of troposphere? 16 to 18 over equator and 8 to 10 over poles. Superb, good memory. I'm so impressed by you. In the troposphere, see, second line is, in this layer, the temperature over equator, correction. In this layer, the temperature generally falls with height called lap rate.
lapse rate at the rate of about 6.5 degrees per kilometer. This is what we studied last time. The lapse Hmm. rate is produced by the rising air. ये बहुत important point है. Lapse rate होता क्यों है? Because of the rising air. What is the term? Why does lapse rate happen? Because of the rising air. Air. आगे आगे का पढ़ो लाइन. राइजिंग एयर के However, बाद. sometimes, हम्म. however, sometimes the temperature also rises with height, उ- inversion, जब or टेम्परेचर or हाइट के remain साथ बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? inversion. इन्वर्जन. जब टेम्परेचर हाइट के साथ कम होता है उसको क्या बोलते हैं? Lapse rate. वेरी गुड, कंटिन्यू. Inversion, or remain the same. रिमेन द सेम में Isothermal. ब्रैकेट में लिखा है आइसोथर्मल. Okay. Isothermal. आइसोथर्मल इज अ वर्ड, उसका मतलब है टेम्परेचर इज रिमेनिंग द सेम. मतलब ना inversion ना lapse rate बीच में. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. सो अगर एक ऐसे भी लेयर्स होते हैं जहाँ पे विथ हाइट योर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. Okay. Inversion is negative lapse rate. Yeah, वो तो पता है. Troposphere is generally unstable. Most of the Important weather is point. Continue. confined to this region, and so is the flying. Answers your question, right? Yes. Most of the flying. ऐसा जरूरी नहीं है because experimental aircrafts and space aircrafts उसके ऊपर भी जाती हैं. But majority of the flying, mainly commercial flights, all happen in troposphere. Carry Troposphere. on. About 75% of the atmospheric mass and 99% of what is that? WV, water vapor. So WV क्या है? Water vapor. Exactly. Water vapor and air. What is this? Aerosols. Lie. Aerosols. What is that? Aerosols. एरोसोल्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ. आपको पता है हम जो भी ये डिओड्रेंट यूज करते हैं ना, Hmm. डिओड्रेंट का जो स्प्रे फॉर्म होता है Hmm. उसको एक्चुअली एरोसोल बोलते हैं. सो एटमॉस्फेयर में भी ऐसी काफी गैसेस हैं जो थोड़ी कंप्रेस्ड रहती हैं. कंप्रेस होने की वजह से वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स या स्प्रे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं. उसको एरोसोल बोलते हैं. बेसिकली कंप्रेस्ड गैस इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे. या फिर कैसा होता है ना, aerosols are tiny airborne solid and liquid particles present throughout the atmosphere and largely responsible for hazy skies. Examples of aerosols are sea salt, dust, and volcanic ash. These are the three common types of aerosols. Okay. समझ गए? Hmm. हम्म. फिर ट्रोपोस्फेयर के तीन पार्ट्स हैं. लोअर ट्रोपोस्फेयर, मिड ट्रोपोस्फेयर एंड अपर ट्रोपोस्फेयर. Hmm. तीनों का रेंज पता है आपको? Surface to 2.1, 2.1 to 7.6, 7.6 to tropopause. Mid tropopause and
सर मैं अपर ट्रोपोस्फियर मतलब 7.6 किलोमीटर टू ट्रोपोपॉज मतलब कितना हुआ? ट्रोपोपॉज is 18, the राइट? depends upon 18 whether किलोमीटर, whether राइट? you are on equator or you are on poles. मतलब उधर लिखा है अपर ट्रोपोस्फियर 7.6 kilometers to tropopause. If we are at the pole, that means 7.6 kilometers to 10 10 kilometers, right? kilometers. Perfect. Perfect. At equator, it's 18. Mm-hmm. What is tropopause? Tropopause is the line separating troposphere Line and separating the troposphere next sphere. and Next stratosphere. sphere. Stratosphere. Very good. Quickly आगे का read करो. The equator is much warmer than poles, and tropopause is much higher at equator. Hence, warmer the hence, and tropopause is much higher at equator. Hence, दो warmer. पॉइंट्स है. इक्वेटर ऑब्वियसली वार्म है पोल से. पोल्स में तो बर्फ Hmm, होती है. इक्वेटर पे hmm, आपको पता है सबसे ज्यादा गर्मी होती है. मोस्ट hmm, ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट लाइज ऑन द इक्वेटर. इंडिया का साउथ hmm, भी इक्वेटर के बहुत पास है, इसीलिए साउथ में ज्यादा गर्मी होती है. द इक्वेटर इज hmm. मच वार्मर देन द पोल्स. सो ट्रोपोपॉज इज मच हायर एट द इक्वेटर बिकॉज इक्वेटर ने आपने बताया 18 किलोमीटर तक जाएगा ट्रोपोपॉज. वेरी गुड. Uh, हेंस वार्मर द hence, सरफेस warmer. हायर इज द Hence, हाइट. warmer the surface, higher the height of. सो अगर आपके एरिया में टेम्परेचर कम है और मेरे एरिया में टेम्परेचर ज्यादा है, तो आपका ट्रोपोपॉज इज लोअर देन माय ट्रोपोपॉज. सिंपल. क्योंकि मेरा टेम्परेचर वार्म है सरफेस पे, तो मेरे यहाँ का ट्रोपोपॉज थोड़ा ऊपर है और आपके यहाँ का कम है, तो कंपैरेटिवली आपका ट्रोपोपॉज थोड़ा नीचे होगा मेरे ट्रोपोपॉज से. Okay. समझ गए? जब समझो रशिया का बहुत कम होगा कंपेयर टू. because it's cold over there वेरी गुड. compared to us. यस डेफिनेटली रशिया में ट्रोपोपॉज लोअर हाइट पे होगा कंपेयर टू आर ट्रोपोपॉज इन इंडिया. गुड. मतलब weather also matters and poles and equator also matters, right? यस. यस. Okay. एक्चुअली देखा जाए तो जैसे जैसे रशिया क्या है ना, रशिया कंपेयर करते हो तो टुवर्ड्स पोल ही है, पोल के पास ही है वो. तो इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल के पास जाओगे ना, आपको रीजन ठंडे ठंडे तो ही मिलते या फिर जाएंगे. मनाली, we can take Manali and Kerala. या डेफिनेटली देयर विल बी अ डिफरेंस इन द ट्रोपोपॉज. मनाली एंड केरला आल्सो. मनाली का हायर होगा कि केरला का हायर होगा? केरला का. डेफिनेटली. वेरी गुड. हम्म, क्या बोल रहे हैं ट्रोपोपॉज के बारे में? यहाँ पे आएगा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर, ऐसे मुझे लग रहा है. So obviously tropopause is the top of troposphere and it is marking the boundary between troposphere and stratosphere. Okay. Tropopause, हम्म, at tropopause the lapse rate reduces to 1 or 2 degrees Celsius per kilometer. तो ट्रोपोपॉज तक 6.5 डिग्री सेल्सियस हो रहा था एंड अभी ट्रोपोपॉज के हम्म. ट्रोपोपॉज पहुंचने के बाद 1 to 2 डिग्री पर मतलब फॉल इन टेम्परेचर कम हो रहा है एंड टेम्परेचर स्टॉप्स फॉलिंग विथ हाइट. सो ट्रोपोपॉज इज द प्लेस जहां पे हमारा टेम्परेचर गिरना बंद हो जाता है. सो सर नॉर्मल ट्रोपोस्फियर में कितना था? 6.5 डिग्रीज पर किलोमीटर, राइट? डिग्री सेल्सियस. हाँ. यस. डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. एंड नाउ इट्स ओनली 1 to 2. यस. एंड देन इट ओके. स्टॉप्स. सो ओके सर, वही मैं मेरा आपको. कैमरा ऑन है क्या? या आई कैन सी यू. ओके. सो चेक दिस आउट. सरफेस पे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है 15 डिग्री. ये हम्म. जैसे आपका हाइट ऊपर जा रहा है, ये देखो हाइट का एरो है, ऊपर जा रहा है, हाँ, आपका टेम्परेचर गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते हाँ, जा रहा है. दिस इज द लैप्स रेट का इंडिकेशन. और यहाँ आने के हाँ. बाद टेम्परेचर गिरना बंद हो जाता है. मतलब ये जो हाइट है जस्ट अबाउट 10 is 11 kilometers. दिस इज अ ट्रोपोपॉज का लाइन. समझ गए? अच्छा. उसके बाद क्या होता है देखो,
11 किलोमीटर्स के पहुंचने के बाद आपका टेम्परेचर बढ़ने लगता है वापस, हाँ। विथ हाइट अप टू स्ट्रेटोस्फियर। एंड पूरे स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, फिर ऑलमोस्ट हम्म। कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ये जो लाइन है ना, यहाँ देखो आइसोथर्मल लेयर आ गया, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, आइसोथर्मल, हाँ स्ट्रेट बराबर। लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ट्रोपोपॉज में मतलब इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन नहीं, इन्वर्जन इज नेगेटिव लैप्स रेट। ट्रोपोपॉज के ऊपर इन्वर्जन होता है। तो लेकिन इधर भी तो कम, अच्छा, लेकिन ट्रोपोपॉज में भी तो कम होता जा रहा है ना। ट्रोपोपॉज ट्रोप नहीं, आपको ये समझना है कि ट्रोपोपॉज पे कम होना बंद हो जाता है। अच्छा। ठीक है, ट्रोपोपॉज पे कम होना बंद हो जाता है। ट्रोपोपॉज के बाद ऊपर आप जाओगे ना, तो बढ़ने लगता है वापस। सर लेकिन इधर ट्रोपोस्फियर से सर जा रहा है वो जो लाइन, वो वापस हम्म। घूम रहा भी तो है राइट साइड में, सो इट्स नेगेटिव लेफ्ट साइड, राइट। या सो वो लोग ने जो ये ट्रोपोपॉज इन्वर्जन। दिखाया है ना अपन को, ये हम्म। ये एक्चुअली थोड़ा ऊपर दिखाया है, उनको थोड़ा नीचे दिखाना चाहिए था। अच्छा। समझ गए? अच्छा। या तो व्हाई, बिकॉज यू तो रीड दिस। इन्वर्जन किधर होता है, स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में, यस। और, स्ट्रेटोस्फियर के और बारे बीच में में भी आप किधर। स्ट्रेटोस्फियर के बारे में भी आप एक चीज पढ़ोगे कि पहले स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। हम्म। ये लाइन देखो आप, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे, एंड फिर एक पॉइंट पे आने के बाद बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। हाँ। आधे स्ट्रेटोस्फियर में धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बाद में तेजी से बढ़ने लगता है, फिर स्ट्रेटोपॉज पहुंचने से पहले ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाता है, कांस्टेंट। हम्म। फिर स्ट्रेटोपॉज पे पहुंचने के बाद टेम्परेचर वापस गिरने लगता है, तो वापस लैप्स रेट। वापस लैप्स रेट। वो हो गया मेसोस्फियर। अच्छा। तो स्ट्रेटोस्फियर में, तो ट्रोपोस्फियर में कम होता है, स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ता है, मेसोस्फियर में कम होता है, फिर हम्म। मेसोपॉज के बाद थर्मोस्फियर आता है। थर्मोस्फियर में थोड़ा कांस्टेंट रहता है, और उसके बाद वापस बढ़ने लगता है। एक कोई तो और एक स्फीयर होता है ना, आयनोस्फीयर और समथिंग कुछ तो ऐसा। आइनोस्फियर, ये रहा आइनोस्फियर, ये देखो। आयनोस्फीयर। सो हाँ। स्ट्रेटोपॉज के ऊपर से आइनोस्फियर शुरू हो जाता है। अच्छा। समझे? तो ये ऐसा है, स्फीयर के और अंदर आयनोस्फीयर स्फीयर हो में क्या गया। होता है, रेडियो रेडियो समथिंग फ्रीक्वेंसी रेडियो बाउंड करके वेव्स को ऐसा रिफ्लेक्ट कुछ। करती है। एच एफ, अच्छा। एच एफ रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, एम एफ हाई एंड एच फ्रीक्वेंसी। एफ, हाई फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी। ओके। सो देखो, मेसोस्फीयर से अपवर्ड्स आइनोस्फीयर है, हाँ। मेसोपॉज से लेके सरफेस तक होमोस्फीयर है, अच्छा। एंड मेसोपॉज से अपवर्ड्स हीटेरोस्फीयर है। तो एक के अंदर एक है ऐसा। अच्छा। समझ रहे हो? हम्म। एंड एक और लेयर होता है जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं। ओजोन लेयर ट्रोपोपॉज से शुरू होता है स्ट्रेटोपॉज तक। सो ओजोन लेयर का मतलब है द लेयर ऑफ गैस नोन एज ओजोन। ओजोन के बारे ओके। में आप पढ़ोगे, ओजोन लेयर इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, बिकॉज ओजोन गैसेस, वो लोग क्या करते हैं, अभी सन है ना, सन से जो रेडिएशन आता है ना, वो अच्छा नहीं हम्म। होता है। इट इज वेरी बैड फॉर अस। हम्म। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोलते हैं उसको। तो ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिल्टर करता है बेसिकली। अगर ओजोन लेयर नहीं होता ना, तो वो फिल्टर नहीं हो पाता, एंड हम लोग को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के वजह से हमारी स्किन बर्न हो जाती है। सो इट्स बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर दैट द सन इज नॉट बर्निंग आवर स्किन। अच्छा। तो ये ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ स्प्रे पेंट्स, एयर कंडीशनर्स, एंड जैसे गैस वाली चीजें होती है ना, ये लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं एंड ओजोन लेयर को
कम कर देते हैं। सो ओजोन लेयर में होल हो जाता है। जहां ओजोन लेयर में होल हो गया वहां अच्छा, पे रेडिएशन सन की फिल्टर नहीं होगी, एंड वो पार्ट ऑफ द अर्थ सीवियरली डायरेक्ट हिट करेगी। डायरेक्ट हिट करेगी एंड सीवियरली रेडिएशन इम्पैक्ट होगा वहां पर। इसीलिए अभी सारे प्रोडक्ट्स ओजोन फ्रेंडली बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट नहीं तो अप्रूव नहीं करती प्रोडक्ट्स को। अच्छा। ऐसा है। सो अभी आप कोई भी घर पे मॉस्किटो रिपेलेंट या कोई भी प्रेशराइज कैन देखोगे ना, जिसमें प्रेशराइज गैस होती है एरोसॉल वाला, उस पे लिखा होता हम्म। है ओजोन फ्रेंडली और नॉट। okay, गाड़ी के स्प्रे पेंट्स एंड ऑल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। गाड़ी का अच्छा। स्प्रे पेंट भी एरोसॉल बेस्ड ही होता है। सो आप ये टेम्परेचर का फंडा समझ गए, राइट? ये ग्राफ इजीली समझ पाओगे हाँ आप। इस ग्राफ के थ्रू हाँ आपको सारे लेयर्स भी पता चल जाएंगे, आइनोस्फीयर, हिट्रोस्फीयर, होमोस्फीयर, ओजोन लेयर भी पता चल जाएगा। ये ग्राफ को क्या बोलते हैं? हाँ। थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। थर्मल मतलब क्या? थर्मल इज रिलेटेड थर्मल। टू टेम्परेचर ओनली। ठीक है। होता है ना थर्मल वेयर, थर्मल वेयर मतलब गर्मी वाला वेयर। गर्मी वाला घर। ठीक है। सो लेट्स जस्ट क्विकली continue from uh, tropopause so that we can find our answer for question number 45. It is the top of the troposphere and marks a boundary between troposphere and stratosphere. At Perfect. tropopause, at tropopause, the lapse rate reduces to to 1 to 2 degrees Celsius per kilometer, or temperature stops falling with height. Very good. The height of tropopause is controlled by surface temperature, As we discussed, surface latitude, temperature as we discussed. season, You land sea know, you know distribution, what is and latitude now? Equator is 0 डिग्री yes, latitude. ऊपर जाएंगे तो नॉर्दर्न yes, लैटिट्यूड, नीचे जाएंगे तो one सदर्न लैटिट्यूड। latitude. सो जैसे रशिया इज अ हायर लैटिट्यूड देन इंडिया, दैट्स व्हाई रशिया इज कोल्डर। करेक्ट। Yes, Manali is at higher latitude than Kerala, and yes. Dahisar is at a higher latitude than Chani Road. Mumbai. चनी रोड, Yes. या दहिसर भी मुंबई में ही आता है, बट ठीक है। Yes, दहिसर इज द लास्ट सबर्ब ऑफ मुंबई ऑफिशियली। I know. वो टोल नाका लगता है ना? हाँ, टोल के बाद थाना शुरू हो जाता है। देन Yes. सीजन। हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय सीजन। अगर विंटर सीजन है तो ट्रोपोपॉज का हाइट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस टेम्परेचर कोल्ड हो गया ठंडी है। है, ठंडी है। वेरी गुड। लैंड सी डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे कितना सी है, कहाँ पे कितना लैंड है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सिप्नोटिक सिचुएशन। What is hypnotic situation? synoptic What is correction, synoptic synoptic. situation? I'll tell you. You read this line again. The height The of height of tropopause is the height of tropopause is controlled by surface temperature, latitude, season, land sea distribution, and it's synoptic, right? Situation. synoptic, yes. आगे का रीड करो। It is higher over the equator, minus 70 degrees to minus 75 degrees Celsius, than at poles, minus 42 minus 45 degrees Celsius. सो इक्वेटर पे बहुत हायर होता है, एंड ये -70 -75 क्या है? 2 ये degrees एक्चुअली Celsius. टेम्परेचर है ट्रोपोपॉज का। हाँ। तो 15 डिग्री है अपने 0 किलोमीटर्स पे, तो 15 हम्म। डिग्री माइनस करते जाओ फॉर एवरी किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर पे पहुंचोगे तो -15, करेक्शन, 6.5 डिग्रीज पर किलोमीटर करना है ना कम हमें। हाँ।
लैप्स रेट के हिसाब से। हाँ, तो अगर 18 किलोमीटर है आपका ट्रोपोपॉज, तो वहां पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 18 इंटू 6.5। 6.5। दैट, हाँ करो, कैलसी यूज करो। 18 into 6.5, हम्म। it's 117। अभी ये 117। 117 minus 15। वेरी गुड। 15 minus 117 minus 102। सो इक्वेटर पे, जहाँ पे हाईएस्ट लेयर है ट्रोपोपॉज का, वहां पे 18 किलोमीटर पे अगर ट्रोपोपॉज है, तो वहां पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा लैप्स रेट के हिसाब से? minus 102। यस। सो ये 70 That's 75 जो दिया है ना, वो 11 किलोमीटर का दिया है अपन को। freezing cold। या इट्स लाइक मोर देन फ्रीजिंग कोल्ड, इट्स लाइक किलिंग कोल्ड आई गेस। ड्राई आइस -27 पे बनाता है, तो ये कितना ठंडा रहेगा? बहुत ज्यादा है। अभी ये वैल्यू दिया है हायर ओवर द इक्वेटर। तो यहाँ दिया है कि इक्वेटर -70 -75 डिग्रीज। सो ये -70 हम्म, 75 मतलब ये लोग ने ट्रोपोपॉज का एल्टीट्यूड क्या पकड़ा है यहाँ पे? तब एक मिनट। करो सब रिवर्स कैलकुलेट करो सेम यूनिट्स यूज करके। 4 किलोमीटर सर। 4 किलोमीटर का मतलब 14 किलोमीटर लिया ये लोगों ने। पॉसिबल। आई एम नॉट श्योर आपने कैसे कैलकुलेट किया है, बट सर 6.5 इंटू 4 किया, उसका कुछ 26 आंसर आया, तो 102 माइनस 26 किया। ऐसे भी तो कर सकते हैं। अगर ट्रोपोपॉज पे -75 है और मेरा हम्म, सरफेस पे 15 डिग्रीज है, तो हम्म, -75 15, तो 90 होता है टोटल। सो 90 डिवाइडेड बाय 6.5 करोगे। 6.5। करो डिवीजन, 90 डिवाइडेड बाय 6.5। 13.84। सो your answer was almost 13.8। ऑलमोस्ट या राइट। आंसर वाज ऑलमोस्ट करेक्ट। सो आप ऐसे कैलकुलेट करो कि वैसे करो, आपका लॉजिक अगर करेक्ट है तो आपका आंसर करेक्ट ही आने वाला है, समझ रहे हो? सो दैट इज वेरी गुड, आई एम हैप्पी टू सी यू डू दिस। पोल्स पे कितना बता रहे हैं? फॉर -42 -45। Tropopause is at a, continue reading quickly. Lower tropopause is at a lower height in winters than in summers, since in troposphere temperatures fall with height up to tropopause. Mm-hmm. Since in troposphere temperature falls, since in troposphere temperature falls with height up Up to to tropopause. tropopause. This is the lapse rate they are Yes. talking about. हाँ, above 8 kilometers, the poles start warming up and become warmer than the equator. इसका मतलब क्या हो Thus, गया? there is a अबाउ 8 किलोमीटर negative, पोल्स गर्म होने लगते हैं। यस, रिवर्स, लैप्स रेट रिवर्स हो रहा है। मतलब टेम्परेचर कम, inversion. इन्वर्जन, एंड बिकम वार्मर देन द Thus, इक्वेटर। there is reversal of temperature and density above
8 किलोमीटर मिल गया सर आंसर अपना। आंसर मिल गया। हम्म, सिनॉप्टिक सिचुएशन का मतलब है कि ओवरऑल elements of the weather including thunderstorms, clouds, cyclones, rain, haze, everything, अच्छा synoptic charts बनते हैं। उसमें प्रेडिक्शन होती है वेदर की, कि कल क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, रेन के कितने चांसेस है, साइक्लोन के कितने हैं। सो दैट इज इट, ओवरऑल वेदर सिचुएशन उनका मतलब है। सो उससे भी अफेक्ट अच्छा। होता है। सो इसीलिए बोला गया है ना कि ट्रोपोस्फियर इज वेरी अनस्टेबल, कि कभी कुछ भी हो सकता है ट्रोपोस्फियर में। सो हमें हमारा आंसर भी मिल गया। हमने ट्रोपोस्फियर को डिटेल में भी चेक कर लिया, एंड लॉजिकली आपका आंसर पहले से गेस सही था, क्योंकि आपने जब पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़े आपने अच्छे से पढ़े हैं, विच इज गुड। अभी फटाफट अपन ये ट्रोपोपॉज का टॉपिक खत्म कर देते हैं, देन विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देयर आर टू रीजन्स वेयर ट्रोपोपॉज ओके। अब्रप्टली चेंजेस हाइट। ऐसे कोई तो दो रीजन है प्लैनेट पे जहां पे ट्रोपोपॉज अचानक से खुद का हाइट चेंज कर लेता है। अभी तो हमने पढ़ा कि ट्रोपोपॉज कैसे हाइट चेंज करता है, सरफेस टेम्परेचर, वेदर वेदर, लैटिट्यूड, और सीजन, पोल्स लैंड एंड सी इक्वेटर। डिस्ट्रीब्यूशन, पोल, इक्वेटर, सिनॉप्टिक सिचुएशन, लैंड एंड सी डिस्ट्रीब्यूशन, सीजन। बट यहाँ पे कुछ देख रहे हैं कि अचानक से अब्रप्टली चेंज करता है हाइट। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक और फोल्ड, ठीक है। ब्रेक्स एंड फोल्ड, ध्यान में रखना, ब्रेक्स एंड फोल्ड्स का मतलब है। चेंजेस हाइट मतलब नीचे आता है ऊपर जाता है? से अगेन। goes down, it comes down tropopause or it goes up? वी विल सी दैट, वी विल सी दैट, बट इट डज चेंज। वी विल सी दैट, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है वो आगे देखेंगे अपन। दोनों होता होगा शायद, ठीक है। सो उसको क्या बोलते हैं व्हेन ट्रोपोपॉज abruptly changes its height, it is known as breaks or folds, Breaks or folds? and it only happens in two regions, Okay. ठीक है। Okay. अभी एक बार ऊपर जाके देखो, रीजन, height of tropopause is controlled by surface temperature, latitude, season, land sea distribution, synoptic situation। इसमें हम्म रीजन से क्या रिलेटेड है, लैटिट्यूड ही है, क्योंकि वो एक फिक्स्ड प्लेस है अर्थ पे, हम्म ठीक है। सो at about 40-degree lat and 60-degree lat, these are the two 40. regions. Okay. Which are the two regions? 40 degree 40-degree lat, lat and 60-degree lat. 40 degree। Lat is latitude. हम्म, मतलब somewhere nearby poles, right? या फिर इक्वेटर के बाजू में? In नहीं नहीं, नहीं। इक्वेटर 0 है, पोल 90 है। हाँ, तो it's somewhere between। Somewhere between, yes, somewhere between. ये अर्थ है, हम्म ये इक्वेटर है। हम्म क्या वैल्यू है इक्वेटर का? 0। 0 डिग्री लैटिट्यूड, वेरी गुड। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका लैटिट्यूड बढ़ता रहेगा। हम्म हम अर्थ का एक्सिस बनाते हैं, ये क्या है, अर्थ पोलर एक्सिस। हम्म। और ये वाला सर ग्रीनिच के ऊपर से रहता ना, आप बोले? वो प्राइम मरीडियन है, अच्छा। वो भी ऐसा ही दिखता है। बट ये जो लाइन बताया है ये अर्थ के सेंटर से जाता है, जैसे एप्पल के सेंटर में सीड होता है,
संतरे के हाँ। सेंटर में गैप होता है, समझ रहे हो? वैसे हम्म। ये अर्थ के सेंटर वाला लाइन है। और प्राइम मेरिडियन अर्थ के सेंटर पे नहीं होता है, वो अर्थ के सर्कमफ्रेंस पे होता है। जैसे क्रिकेट बॉल के ऊपर लाइन कैसे होती है रस्सी की, प्राइम हाँ, मेरिडियन वैसा होता है। समझ रहे हो? अच्छा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। एक्सिस इज दैट लाइन अराउंड विच द अर्थ रोटेट्स अबाउट इटसेल्फ। गोल गोल घूमता रहता है ना, तो खुद के एक्सिस के अराउंड घूमता रहता है वो। अर्थ पोलर एक्सिस, ये हो गया अर्थ इक्वेटर। एंड ठीक है। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप ध्यान से देखोगे तो अर्थ पोलर एक्सिस एंड अर्थ इक्वेटर के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है ये। हम्म। इसीलिए ये लाइन 0 है और ये लाइन 90 डिग्री है। अगर मुझे हम्म। 40 डिग्री एंगल बनाना है ना, तो वो एग्जैक्टली दोनों के बीच में आएगा, ये रहा। तो ये जो फोर्टी एंग फाइव हुआ। 45 एग्जैक्टली। ऐसा होता है 45 डिग्री एंगल ऑफ लैटिट्यूड। ये एंगल है, तो ये लैटिट्यूड कहाँ होगा मेरा 45 डिग्री? द लाइन वेर इट टचेस द सरफेस, दिस लाइन। हम्म। सो दिस एक्चुअली एंगल तो यहाँ बन रहा है, बट ये लाइन सरफेस पे कहाँ टच हो रहा है ना, वो मेरा है 45 डिग्री लैटिट्यूड। ब्रेक। नो नो, 45 डिग्री लैटिट्यूड, आपको लैटिट्यूड समझा रहा हूँ अभी। ओके। समझ गए? तो ये 45 हम्म। डिग्री है, तो 40 डिग्री कहाँ होगा? थोड़ा नीचे उससे। ये हो गया 40 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ हो गया? 45 वाले के ऊपर। ऊपर, ये रहा 60 डिग्री। सही है? हाँ। समझ गए अच्छे से? हम्म। और ये हो गया 60 डिग्री लैट, सिंपल। सो ब्रेक्स एंड फोल्ड कहाँ कहाँ होते हैं? 40 डिग्री लैट एंड 60 डिग्री लैट पे होते हैं ब्रेक्स एंड फोल्ड। हम्म। कौन सा ज्यादा प्रोमिनेंट है दोनों में? क्या टेक्स्ट बुक में चेक करो, कौन सा ज्यादा प्रोमिनेंट है? मतलब? 40 डिग्री या 60 डिग्री? मोर प्रोमिनेंट 40 या डिग्री। प्रोमिनेंट मीन्स स्ट्रोंगर। या मोर विजिबल, मोर इम्पैक्टफुल, मोर स्ट्रॉन्गर। देखो मैंने नॉर्थ पोल 90 डिग्री लाइट भी आपको दिखा दिया है डायग्राम में। हाँ। एंगल समझ गए लैटिट्यूड एक्चुअली बनता कैसे है और होता कहाँ पे है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो हम्म, अच्छे से। ले लिया। वेरी गुड, पूरे का ना? ठीक है। हाँ। सेफ सेफ, ठीक है।
ब्रेक एट 40 डिग्री लैट इज मोर प्रोमिनेंट। तो हमें अब तक पता नहीं है ब्रेक्स एंड फोल्ड्स होते क्या है, बट इतना पता है कि 40 डिग्री पे ब्रेक हम्म, होता है विच इज मोर प्रोमिनेंट। हम्म, ठीक है, क्या होता है 40 डिग्री पे? ब्रेक। Break is basically a drastic change in the height of tropopause. Correct? Breaks and folds, abrupt change in the height of tropopause. इतना हम लोग को लिंक करने आ गया ब्रेक क्या होता है। Break at 40 degree lat is more prominent. Jet streams occur at these breaks. Very important. Jet streams occur at these breaks. पता है जेट स्ट्रीम क्या होती है? हाँ, जेट, कोई बड़ा एयरक्राफ्ट जाता है तो वो वो जेट स्ट्रीम, टर्बुलेंस क्रिएट करके जाता है। नहीं 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 नहीं, जेट स्ट्रीम वो नहीं होती। Then, जेट स्ट्रीम इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड। ठीक है, पूरे एटमॉस्फेयर में एक एक जगह पे एक स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड होता है विच एक्ट्स लाइक अ टनल। ठीक है, अगर आप वो जेट स्ट्रीम में चले जाओगे ना, तो आप कम टाइम में कम फ्यूल में अपने डेस्टिनेशन में ज्यादा जल्दी पहुंच जाओगे, बिकॉज वो टनल आपको एक ज्यादा स्पीड देता है, एनहांस स्पीड देता है। सो अगर आप वेदर फोरकास्ट करते हो, आपको 10,000 फीट पे नहीं मिलता है जेट स्ट्रीम, आपको हायर एल्टीट्यूड पे मिलता है। इसीलिए आप जब सीपीएल कर रहे थे तो आपको जेट स्ट्रीम नहीं मिला होगा, एंड छोटी प्लेन्स नहीं सर्वाइव करेंगे जेट स्ट्रीम में, बट बड़ी प्लेन्स करती है। तो अगर आपके वेदर में, वेदर फोरकास्ट में बताया है कि यहाँ पे ये एल्टीट्यूड पे जेट स्ट्रीम मिलेगा, तो आपको क्रूज एल्टीट्यूड फ्लाइट प्लान पे वही एल्टीट्यूड दिया जाता है। देन यू एक्चुअली लुक फॉर जेट स्ट्रीम, अच्छा, एंड इफ यू फाइंड अ जेट स्ट्रीम, देन इट इज गुड फॉर यू। but what if it's in the opposite direction? Then it is not meant for you. Don't go into it. You fly below the jet stream basically, or near outside the jet stream. लाइक टेल विंड होता है उसमें तो फास्ट हो जाता है क्या? टेल विंड में फास्ट होता है ऑब्वियसली, एंड हेड नहीं विंड में मतलब स्लो होता है। जेट स्ट्रीम ऐसे ही चूज करेंगे जो जिसमें टेल विंड टेल होगा। विंड होता है ना। एग्जैक्टली exactly. वैसे हेडविंड मिलेगा तो आपको फ्री में लिफ्ट तो जरूर मिलेगा, बट आपको फिर हाँ ड्रैग वो भी भी है। ज्यादा ही लिफ्ट क्यों मिलेगा। चाहिए सर? लिफ्ट ड्रैग चाहिए ही भी नहीं है इतना अपन को, लिफ्ट चाहिए ही नहीं एग्जैक्टली वही पहले इतना ऊपर है और ऊपर क्यों ड्रैग जाना? बढ़ाएगा, वो ड्रैग बढ़ाएगा आपका। सो उल्टा और फ्यूल ड्रैग इज जाएगा और ऑपोजिट टू स्पीड कम होगा। थ्रस्ट, सो आपका एयर स्पीड कम हो जाएगा। यस। अभी ये जो ब्रेक्स हैं जो 40 डिग्री पे होते हैं विच आर मोर प्रोमिनेंट है, जेट स्ट्रीम्स भी हमें ब्रेक्स में मिलती है। वो ब्रेक्स ट्रोपोपॉज को 3 सेक्शन में डिवाइड जेट करता है। स्ट्रीम सिर्फ जेट स्ट्रीम सिर्फ इस ब्रेक्स पे ही होती है या ऐसे नॉर्मली किधर भी होती है? ब्रेक्स में ही होती है, तो जहां ब्रेक्स है वहां पे जेट स्ट्रीम है, सिंपल। अच्छा। सो दीज ब्रेक्स ब्रॉडली डिवाइड द ट्रोपोपॉज इन 3 सेक्शन। सो आपका जो ट्रोपोपॉज है ना, अभी तक हमें लग रहा था कि वो एक लाइन हाँ। है, बट अभी हमें पता चला है कि वो ट्रोपोपॉज भी एक लाइन नहीं है, बट वो एक लेयर है जिसको ब्रेक्स के वजह से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है वो। किसके वजह से? ब्रेक्स के वजह से। रिमेंबर दिस ब्रेक्स की पॉइंट। वजह से। So let's quickly check the 3 parts of the 3 sections of the tropopause. पहला tropopause है polar tropopause, पोलर second ट्रोपोपॉज। tropopause है tropical tropopause, and third है middle tropopause। ठीक है, अच्छा। अभी मैं आपको है ना एक और चीज तो बताता हूँ। ये जो 3 वर्ड्स है ना, इनका इंपॉर्टेंस बताता हूँ आपको मैं। कैन आई चेंज कलर, कलर, अच्छा ये रहा रेड। वेरी गुड। ओके, अभी जो इक्वेटर है हाँ वो एकदम अर्थ के सेंटर में आता है ना। हाँ सर, इक्वेटर को ऐसा ही बोल सकता है क्या? इक्वेटर इज अ लाइन व्हिच डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। या इट्स नॉट जस्ट अ लाइन, एक्चुअली इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल। ओके, इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल व्हिच डिवाइड्स अर्थ अर्थ इन टू इनटू इक्वल इक्वल पार्ट्स। पार्ट्स। वेरी गुड।
23 लैटिट्यूड पे, 23 लैटिट्यूड को हम लोग बोलते हैं, तो 23 कहाँ होगा? अगर ये 45 डिग्री एंगल है तो 23 कहीं यहाँ आएगा। सो मैं इसके आधे पे। यहाँ पे आधे पे, या सो ये एंगल मैंने बनाया है 23, रेड वाला ना? रेड वाला, हाँ। अच्छा। इस तरह बनाते हैं। ये हो गया 23.5 डिग्री लैट। बट इसका जब पैरेलल बनाएंगे लैटिट्यूड का, तो हमें मिलेगा यहाँ पे ऐसा, थोड़ा नीचे आएगा। मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया है। सो इसका पैरेलल कैसा दिखेगा हमें? इसका पैरेलल हमें दिखेगा ऐसे, पैरेलल टू इक्वेटर। ये जो अच्छा। लाइन है ना 23.5 डिग्रीज, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम्म। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ये लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक। अच्छा। सिमिलरली सर साउथ वैसे में है। जिगजैग क्यों गया ऊपर? 23 डिग्रीज लैट इतना ऊपर कैसे गया? ऊपर कहाँ गया? ये रहा ना। मतलब नहीं, ये नीचे से जो अपना एरो, नीचे से जो एंगल बनाता है ना, हाँ 23 वाला ऐसे वी वाला। ये, हाँ, उस पे लेके जाओ आपका मार्कर। हाँ, हाँ किधर है? किधर दिख रहा नहीं मुझे, कर्सर नहीं दिख रहा। हाँ, वो वाला है, वो 23 हुआ ना? ये पॉइंट आ गया 23। ये पॉइंट आ गया हाँ 23 अर्थ सरफेस पे। अभी ये तो अर्थ के पूरे हाँ सरफेस पे आएगा ना, पूरे सर्कमफ्रेंस पे आएगा ना, चारों तरफ पूरे सर्कल पे आएगा अर्थ के। हाँ तो अगर वो हाँ, सारे एंगल्स को कनेक्ट करोगे तो एक लाइन बनेगी, बराबर। एक ऐसा रोप की तरह पूरा रोप की बनेगा। तरह। तो उसको जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको सर्कुलर दिखेगा, और अगर सामने हाँ से देखोगे तो स्ट्रेट लाइन दिखेगी आपको। हाँ ये रही वो स्ट्रेट लाइन, इक्वेटर के जैसे ही। हाँ। समझे? दिस इज नोन एज द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, से दिस लाइन इज पैरेलल टू द इक्वेटर। अच्छा। समझे? सो हम्म। ये पॉइंट यहाँ पे भी 23.5 हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे भी 23.5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 23.5 हो जाएगा। कहीं पे हाँ, भी अर्थ पे ये लाइन पे 23.5 हो जाएगा। ऐसा है। तो कोई जिगजैग नहीं है, वो बस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। अच्छा। समझ रहे हो? हम्म। इसका नाम मैं दे रहा हूँ, इसलिए आपने सुना होगा ना ट्रॉपिकल पैराडाइस। सुना है ऐसे नाम, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक्स, सब लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, हॉलीडेज पे जाते सुना हैं। सुना, हवाई वगैरह। हवाई ववाई, तो बेसिकली वो सारी जगह है ना, ये ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,23 डिग्रीज या वो रेंज फ्लैट। में, या एग्जैक्टली 23 पे नहीं, बट +-10 पकड़ सकते हो आप। अच्छा। ठीक है।
ओके। सो ट्रोपोपॉज के 3 सेक्शन है बिकॉज ऑफ ब्रेक्स. Breaks are prominent at 40 degrees latitude. Which are these sections? The first section is polar tropopause. Polar से मतलब है over the poles. बट ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, प्लीज रीड करो इसको जल्दी से शशांक. It occurs near 3000 hectopascal level polewards of latitude 45 degree to 60 degree. It हम्म. may be noticed occasionally over Srinagar, Jammu Kashmir in winters when polar air inclusion occurs. Polar front jet stream is found at its southern end. बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स है ये. सिंपली आपको तीनों पॉइंट्स को एक एक लाइन में याद करना है. पोलर ट्रोपोपॉज कहाँ मिलता है? ये आपको 3000 हेक्टापास्कल के लेवल पे मिलता है पोलवर्ड्स. मतलब 45 डिग्री से पोल्स के टूवर्ड जाओगे अप टू 60 डिग्रीज. ठीक है. हाँ ये हमें इंडिया में कहाँ दिखता है? श्रीनगर के ऊपर दिखता है विंटर्स में. क्यों दिखता है? बिकॉज पोलार एयर इनकर्जन होती है. पोलार एयर इनकर्जन इज अ फंडामेंटल, it's basically a, what do we call it, it's a process जहां पे air from the polar regions come to the tropics. समझ गए? air from the polar region come to the tropics मतलब नीचे. Yes. नीचे या पूरा जगह पे नहीं, बट एक टनल बना के आते हैं खुद का. अच्छा. ठीक है. और ये 300 हेक्टापास्कल क्या? ये प्रेशर, एयर प्रेशर का वैल्यू है. एयर प्रेशर का. हाँ. अभी मैंने आपको बोला था आपका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर वैल्यूज याद कर लो. तो कितना है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर वैल्यूज. हाँ, कितना है अर्थ सरफेस पे हेक्टा पास्कल वैल्यू? अर्थ सरफेस पे नहीं मालूम सर. टेक्स्ट बुक खोलो खुला ही है. और ओपन पेज नंबर 7. प्रेशर, पहले देखो आईएसए मिला, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर. यस. हाँ, उसमें देखो प्रेशर एट मीन सी लेवल कितना है? एक मिनट. 1013.25. हेक्टा पास्कल्स. हम्म. आपको ये सारी वैल्यूज याद करनी है, 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे इस पे. ठीक है, आईएसए के वैल्यूज पे. सो प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर मुझे कहाँ इसमें मालूम था. सर किसमें एच हुआ? जी क्या होता है? टू ए- नाइनटी पॉइंट नाइन टू वो ग्राम्स ऑफ प्रेशर, मर्क्यूरी ना. इंचेस 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 ऑफ मर्क्यूरी मर्क्यूरी. राइट. हाँ, एक इक्विपमेंट होता है थर्मोमीटर जैसा, उसको बैरोमीटर बोलते हैं. उसमें हाँ. मर्क्यूरी प्रेशर के हिसाब से राइज करता है ऊपर. तो आईएसए के हिसाब से वो 29 इंचेस तक राइज करता है ऐसा. अच्छा. सो प्रेशर सरफेस लेवल पे सबसे ज्यादा होता है. ठीक है. हाँ. जैसे जो जैसे हम ऊपर जाते ऊपर रहते हैं जाते कम हो होता है. प्रेशर कम होने लगता है. यस. सो हाँ. आपको पोलर ट्रोपोपॉस वहां मिलता है जहां पे आपका प्रेशर 300 पे हेक्टापास्कल है. 3300 होगा. हाँ, तो आप उससे एल्टीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हो. लगभग कितना होगा आपका अच्छा. एल्टीट्यूड, अगर आपको प्रेशर का लैप्स रेट मिलेगा तो. प्रेशर का लैप्स रेट. ठीक है. अगर आपको और पता सर है. हम्म. कितना गिरता है ये हेक्टा पास्कल लैप्स रेट में कितना गिरता है सर? अभी इसका कोई लैप्स रेट और जैसा फिक्स्ड वैल्यू नॉर्मल तो नहीं लैप्स रेट है. पे नॉर्मल इस पे कितना गिरता है? 2 डिग्री सेल्सियस और वो 1 इंच टेम्परेचर है. ऑफ मर्क्यूरी बराबर. दैट इज टेम्परेचर, दैट इज नॉट प्रेशर. टेम्परेचर 2 डिग्री गिरता है और सर एक से ये गिरता है ना प्रेशर. बढ़ता है गिरता है. ऐसा गिरता है कुछ गिरता है. ऐसा कुछ अब तक हमने पढ़ा नहीं है, वो हम पढ़ेंगे.
प्रेशर का कोई फिक्स्ड वैल्यू है क्या जिसपे वो गिरता है और हाँ गिरता है सर, तो 1 इंचेस ऑफ कितना? मर्क्यूरी। कहाँ लिखा है बताओ? अरे सर, यूएस में पढ़ा था मैंने कि टैप में क्या होता है, टेम्परेचर भी गिरता है, और एज वी गो हायर एज वी गो हायर टेम्परेचर डिक्रीजेस 2 degrees per 1,000 feet and 1 inches of mercury. हम्म, दैट इज एक प्रेशर. मिनट में ढूंढने या दो मुझे। या वेरी गुड, वेरी गुड. ट्राई टू हाँ, रिकलेक्ट, ट्राई टू रिकलेक्ट. तो सर अगर 1 इंच ऑफ मर्क्यूरी भी कम होता है तो वैसे इसका भी कुछ कम होता होगा ना, हेक्टा पास्कल में। इसका एक्चुअली कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसका थोड़ा सा एक फॉर्मूला है. ओपन पेज नंबर 12. 1 मिनट सर। एक मिनट सर। खुला खुला खुला। क्या है चैप्टर नेम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एग्जैक्टली. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, पेज नंबर 13. हाँ एक ग्राफ भी दिया है हमें. हाँ सो यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ हाइट बढ़ रही है, यहाँ प्रेशर की बात हो रही है. सो पहले हम लोग ये देखेंगे लाइन. द प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट. ठीक है, प्रेशर भी कम यस होता है हाइट के हिसाब से. एट अ डिक्रीजिंग रेट. डिक्रीजिंग रेट मतलब पहले प्रेशर ज्यादा कम होता है हाइट के साथ, फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो प्रेशर धीरे धीरे कम होता है. कांस्टेंट रेट नहीं है. लैप्स अच्छा रेट इज अ कांस्टेंट रेट, बट प्रेशर डिक्रीज रेट इज अच्छा। एक्चुअली. तो शुरुआत में थोड़ा ऊपर जाओगे तो ज्यादा प्रेशर कम होगा, फिर आगे उतना ही हाइट ऊपर हाँ, जाओगे तो कम प्रेशर कम होगा. कम प्रेशर होगा, कम रेट पे। कम रेट पे, एग्जैक्टली, वेरी गुड. सो ध्यान से पढ़ो आगे. फ्रॉम सी लेवल टू 600 meters हाँ प्रेशर डिक्रीज होता है एट 4%. हाँ। फिर 600 मीटर से 1.5 किलोमीटर तक वन कम हो पॉइंट फाइव जाती है रेट किलोमीटर एंड 3% हो थ्री जाती डिग्री है. थ्री हाँ, and परसेंट up to 3 kilometers, एंड 2.5 to फिर 5 1.5 से 3 किलोमीटर kilometers, रेट और कम हो 2.5. जाती है, 2.5 हो जाती है. एंड 6 किलोमीटर पे वैल्यू सी लेवल की और हाफ हो जाती है, मतलब 2% पे आ जाता है. एंड 100 किलोमीटर पे जाओगे ऊपर, इट इज नेग्लिजिबल एंड कैन बी रिगार्डेड एज वैक्यूम. वैक्यूम मीन्स नो एयर, नो प्रेशर. हाँ, 100 kilometers तो बहुत हो गया सर। बहुत हो गया यार. ऐसे हम लोग 1-1.5 घंटे में 100 किलोमीटर पहुंच सकते हैं हॉरिजॉन्टली रोड पे. बट स्पेस में 100 किलोमीटर जाना बोले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है. इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट इजीली पॉसिबल. अभी देखो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये है जो आपको बाय हार्ट करना है. इसके ऊपर आपको कैलकुलेशंस आएंगी, 1-2 मार्क्स तो आप यहीं स्कोर कर लोगे. इसीलिए फर्स्ट 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए. हाइट डिफरेंस विथ 1 हेक्टापास्कल चेंज ऑफ प्रेशर. हाँ। हेलो। हेलो. हाँ, सुनाई दे रहा है सर, बोलो। हाँ, 2 मिनट का ब्रीदर ले लो. क्या क्या? शशांक, या शशांक, यस सर। we'll take a 5 minute break and we'll resume, okay? ओके। Just yeah.
Okay, so because we are resuming the um, recording now, I'll rephrase. आप भी revise कर लो. If we have to calculate the pressure change with increasing altitude, then the formula for every 1 hectopascal value of pressure change is 96, which is a constant, multiplied by temperature in Kelvin. So हम समझ रहे थे कि Kelvin का वैल्यू क्या है. सो 0 डिग्रीज होता है केल्विन में 273 केल्विन. अगर 1 डिग्री है तो 1 + 273 हो जाता है. वैसे ही अगर 1 केल्विन ढूंढना है तो 1 केल्विन हो जाता है -273 डिग्रीज. सो अभी हमने एग्जांपल लिया, अगर 300 केल्विन है तो डिग्रीज में कितना होगा, तो आपने बताया उसका आंसर होगा 27 डिग्री सेल्सियस. दैट इज अ करेक्ट आंसर. ओके. या वेरी गुड. दीज आर सिंपल कैलकुलेशंस. एग्जाम में 10 मार्क्स तो आप ऐसे ही कमा लोगे अगर आपके बेसिक्स इतने अच्छे होंगे तो. और आपको टारगेट 35 करेक्ट आंसर्स का होता है, एंड वी हैव टू एम टू गेट 45 करेक्ट आंसर्स टू बी ऑन द सेफर साइड. सो अगर 10 आ रहे हैं तो हमें सिर्फ 25 का वरी करना है, ऐसा है. तो आपको ध्यान से करना है ये चीज. So height difference with 1 HPA is, so what's the formula? The formula is pretty simple. 96 multiplied by temperature in Kelvin. एग्जाम में वो लोग क्या करेंगे ना, आपको टेम्परेचर केल्विन में नहीं देंगे, टेम्परेचर And डिग्री में देंगे. this is a temperature for what? वो क्वेश्चन में दिया Like this होगा. formula is for what? दिस फॉर्मूला इज टू फाइंड आउट हाउ मच feet does it take for a pressure change of 1 hectopascal with increasing altitude. Okay. सो 30 एवरी 30 फीट अगर आपका 1 हेक्टापास्कल कम हो रहा है तो Hmm. 30 + 30 + 30, 90 फीट जाओगे तो 3 हेक्टापास्कल कम हो जाएगा. 900 फीट जाओगे तो 30 हेक्टापास्कल कम हो जाएगा. सो ऐसे आप मल्टीप्लाई फिर कर सकते हो. अगर 1 हेक्टापास्कल फॉर एवरी फीट मिल गया तो आपको जो वैल्यू दी होगी उससे आप एल्टीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो. So this formula is to find out for in how many feet do we get a value of 1 hectopascal decrease of pressure. So वो जो फीट का वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है. लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर में कांस्टेंट है 1000 फीट, समझ गए. बट प्रेशर में वो कांस्टेंट नहीं है बिकॉज इट वेरीज विद टेम्परेचर. समझे. तो टेम्परेचर कम है ज्यादा है उससे आपका प्रेशर का जो डिक्रीजिंग रेट है वो भी कम या ज्यादा होगा. अच्छा. समझ गए. हाँ. वेरी गुड. सो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि the difference of 1 hectopascal at pressure 1000 HPA with temperature 300 Kelvin would be. तो हमने फॉर्मूला पूरा नहीं पढ़ा है. पूरा फॉर्मूला अगर हम पढ़ेंगे तो ये है 96 into temperature in Kelvin divided by pressure in hectopascal. अच्छा, वो आगे वाला चैप्टर में क्या? पेज नंबर 13. हाँ हाँ. स्क्रीन पे नहीं देख पा रहे हो? देख रहा हूँ देख रहा हूँ. हाँ. सो आपको दो एलिमेंट चाहिए, एक तो टेम्परेचर इन केल्विन एंड प्रेशर. सिंपल. सो आपको ये मिल गया प्रेशर 1000, टेम्परेचर मिल गया 300 केल्विन. फॉर्मूला नोटबुक में लिखो. हम्म. फॉर्मूला क्या है? 96 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 1000. फिर उसको कैलकुलेटर से एक बार सॉल्व करो. शुरुआत में हम डिवाइडेड प्रैक्टिस बाय करेंगे कैलसी से सॉल्व करना. फिर फॉर्मूला पक्का हो गया 300. तो फिर हम लोग विदाउट कैलसी सॉल्व करेंगे. 96 डिवाइडेड बाय 300. डिवाइड है कि मल्टीप्लाई है? फॉर्मूला लिखा नहीं क्या नोटबुक में? अपने मल्टीप्लाई बोला, अपने डिवाइड बोला. प्रेशर से डिवाइड होगा, टेम्परेचर मल्टीप्लाई होगा. तो 96 टाइम्स 300. प्रेशर कितना है? 1000. तो 9 तो 96 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय 1000. वेरी गुड.
क्या है वैल्यू? सर 0.3 times 96. 28.8. तो इसका यूनिट है फीट। आंसर का फॉर्मूला पूरा लिखो अच्छे से। फॉर्मूला नोटबुक में ये लिखो आप। अच्छा हाइट डिफरेंस विद लिख 1 एचपीए चेंज ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू 96 इंटू टेम्परेचर ब्रैकेट में के लिखना डिवाइडेड बाय प्रेशर एंड आंसर मिलेगा फीट में। सो फॉर एवरी 28.8 फीट यू विल लूज 1 हेक्टापास्कल ऑफ प्रेशर एज यू इंक्रीज। हम्म, समझे? ऐसा है। हम्म, सो आईएसए कंडीशन में क्या होता है, अगर हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर की कंडीशन पकड़ते हैं तो उसकी फिक्स्ड वैल्यूज दी जाती है हम लोग को। हाँ क्या है वो फिक्स्ड वैल्यूज? मीन सी लेवल टू पे डिग्रीज टू अगर आप डिग्रीज मीन सी लेवल पे 15 डिग्रीज टेम्परेचर और 29.902. वो प्रेशर का वैल्यू है, और मीन सी लेवल से अगर आप ऊपर जाते हो तो आईएसए के हिसाब से आपका प्रेशर कितना गिरता है। 1 इंच 1 इंच. नहीं, वो भूल जाओ 1 इंच वाला पॉइंट। अभी आप यहाँ पे दिया है टेक्स्ट तो बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया है, देखो ध्यान से स्क्रीन पे चेक करो। मीन सी लेवल पे आप हो तो आपका 27 फीट पे 1 हेक्टापास्कल कम होता है। अच्छा जब आप 2000 फीट पे पहुंचते हो तो आपका 30 फीट पे 1 हेक्टापास्कल कम होता है। अच्छा जब आप 20,000 फीट पे पहुंचते हो तो एवरी 50 फीट पे 1 हेक्टापास्कल कम होता है। अच्छा और जब आप 40,000 फीट पे पहुंचते हो तो एवरी 100 फीट पे 1 हेक्टापास्कल कम होता है। अच्छा. सो डिक्रीज हो गया। मीन सी लेवल पे जल्दी जल्दी 1 हेक्टापास्कल कम हो रहा है 27 फीट पे। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, हम्म. ज्यादा ज्यादा गैप पे कम कम प्रेशर डिक्रीज होता है। अच्छा सो ये सारी वैल्यूज आपको बाय हार्ट करनी है। आईएसए के 1 एचपीए प्रेशर चेंज एट डिफरेंट हाइट रफली करेस्पॉन्ड्स टू, ये वैल्यू चारों आपको बाय हार्ट करनी है अलोंग विद द फॉर्मूला। हम्म, देन 2 पॉइंट्स हम लोग को दी है। अगर आईएसए का जो टेम्परेचर है 15 डिग्रीज, अगर आज के दिन पे वो 15 डिग्री नहीं है, ठीक है, हाँ वार्म है, ज्यादा है टेम्परेचर, देन हम्म, चेंज इन हाइट विल बी मोर देन अबव वैल्यूज। हम्म, टेम्परेचर ज़्यादा है तो चेंज इन हाइट विल बी मोर कंपेयर टू दी आईएसए वैल्यू। और अगर मेरा टेम्परेचर आईएसए से कम है, मतलब 15 डिग्री से अगर कम है, हम्म, 13 डिग्री, 14 डिग्री, 12 डिग्री, देन चेंज इन हाइट विल बी लेस देन दी आईएसए वैल्यू। ये अच्छा की पॉइंट, ये दोनों की पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं। यहाँ पे काफ़ी स्कोरिंग पॉइंट्स है ये आपके लिए। समझ गए? आप देखोगे आगे इस पे बहुत क्वेश्चंस आएंगे। सो कोल्डर कोल्डर एटमॉस्फेयर पे कम टेम्परेचर कम प्रेशर वेरिएशन होता है, वार्मर पे ज्यादा होता है। कम ज्यादा ज्यादा. किसके करस्पॉन्डिंग है? आईएसए के करस्पॉन्डिंग है। ऐसे. आईएसए का क्या वैल्यू है? मीन सी लेवल पे 27 फीट फॉर एच 1 एचपीए, 10 हम्म, 2000 फीट पे 30 फीट, 30. 20,000 पे 50 20,000 फीट पे 50 एंड 40,000 पे और 100। 40,000 पे 100 फीट. और जो हमने कैलकुलेट किया उस पे हमें मिला है 28.8 फीट पे 1 एचपीए कम होता है। क्यों? क्योंकि मेरा हाँ. एग्जिस्टिंग प्रेशर वहां पे था 1000 एचपीए। हम्म. अभी ये 1000 एचपीए आईएसए से तो ज्यादा ये है कि कम है? 28.8 क्या है कि 28.8 एक्चुअल वैल्यू है। फीट पे मेरा 1 1 एचपीए एचपीए कम कम होगा. होता है। तो जैसे जैसे आप क्लाइम करोगे ना, एल्टीट्यूड गेन करोगे, सो हम्म. फॉर एवरी गेन ऑफ 28.8 फीट यू विल लूज 1 एचपीए ऑफ प्रेशर। हम्म. सो अभी मुझे बताओ आईएसए क्या वैल्यू थी एचपीए में प्रेशर की? ऐसे 1013. अभी बोलो 1013 से कम है कि ज्यादा है? कम. कम है।
ठीक है, तो वो एक्चुअल प्रेशर हो गया, आईएसए नहीं हो गया, एक्चुअल हो गया। तो हमें ओके। अगर हमारा एग्जिस्टिंग एरोड्रोम प्रेशर जहाँ पे आप हो वो अगर आईएसए वैल्यू से मैच नहीं करता है, तो आपको रियल हम्म। वैल्यू लेके ये कैलकुलेशन करके आपको अपने प्रेशर का डिक्रीजिंग रेट निकालनी पड़ती है। अच्छा। समझे? और हम्म। ये सब फ्लाइट प्लानिंग में काम आता है, इसलिए आप मेट्रोलॉजी पढ़ते हो, आधे से ज्यादा इसलिए पढ़ते हो ताकि आपको फ्लाइट प्लानिंग में काम आए। हम्म। चलो फटाफट ये वैल्यूज बाय हार्ट कर लो, पेज नंबर 13। 13। एंड आई वांट यू टू गेट योरसेल्फ अ पेंसिल हाँ, टू मैं मार्क योर वही ढूंढ टेक्स्ट। रहा था लेकिन नहीं मिली। हाँ, पेन से ही मार्क किया इसलिए मैं। पेन से एक बार कर लो मार्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लिया छोटी कर लिया। मार्किंग, छोटी मार्किंग करो, ज्यादा भी उसको हम्म। प्रोमिनेंट मत करो। और आज जाके एक 5 रुपए की पेंसिल ले लेना शार्पनर के साथ। नहीं, है घर पे, किधर तो दिख रही नहीं है। बहुत है पेंसिल्स घर पे। हाँ तो फिर ढूंढ लेना और जमा कर लेना। हम्म। बाय हार्ट कर लो ये वैल्यूज फटाफट, फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो एंड आई से वैल्यूज बाय हार्ट कर लो। वार्म है तो मोर है, कोल्ड है तो लेस है, सिंपल। हम्म। 1 HPA ड्रॉप इन फीट वो हम पता कर रहे हैं, 1 HPA ड्रॉप। कल को क्वेश्चन में पूछते हैं कि 30 HPA ड्रॉप हुआ है तो आप कौन से एल्टीट्यूड पे हो, तो पहले आप 1 वाला वैल्यू निकालोगे। अगर 1 का वैल्यू टाइम्स आपके, 30। हाँ, इंटू 30 करोगे तो आपको आपका एक्चुअल एल्टीट्यूड मिल जाएगा। समझे? तो आपका अगर बेस स्ट्रांग है ना, तो आप अपना लॉजिक जो इतना अच्छा है वो यूज करके कभी भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ये हो जाएगा तो मुझे बताओ, देन विल गो बैक टू दैट टॉपिक, अर्लियर टॉपिक। हो गया सर। बाय हार्ट कर लिया? हाँ। वेरी गुड। सो फटाफट हम ट्रोपोपॉज के बाकी 2 लेयर भी देख लेते हैं, ठीक है? हम्म। हमने पोलार ट्रोपोपॉज देखा, देखा। अभी ठीक है? ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज और मिड। ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज, ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज हमें कहाँ मिलता है? दिस इज यूजुअली एट 100 HPA लेवल, हम्म। ठीक है, मतलब हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड। करेक्ट। कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होता है ये? इक्वेटर इट से एक्सटेंड्स फ्रॉम इक्वेटर टू लैटिट्यूड 35 टू 40, 40 डिग्री। मतलब ये इक्वेटर से पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस करके 30 to 40 तक चले जाता है। हम्म। इंडिया में क्या हाइट है बराबर, ट्रॉपिकल ट्रॉपिक ऑफ ट्रोपोपॉज की? 16 to 16.5 किलोमीटर्स। ये जहां जहां इंडिया का नाम आता है ना, वो तो आप हाँ। समझ लो कि क्वेश्चंस आने के डबल चांसेस है, अच्छा। क्योंकि ये इंडियन स्पेसिफिक हो गया ना एग्जाम। हम्म। हम्म। तो इंडिया में ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज कहाँ मिलता है? 16 to 16.5 16.5। किलोमीटर्स ऑफ एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड इक्वेटर टू 35 to 40। सो पूरा रेंज है इक्वेटर से 40 डिग्रीज तक। 40 डिग्री में हमें क्या मिलता है? ब्रेक्स मिलते हैं, ब्रेक्स। ब्रेक्स ब्रेक्स क्या और होते फ्रंट्स। हैं? या ब्रेक्स और ब्रेक्स ब्रेक्स और क्या? फ्रंट्स ना? फोल्ड्स, फोल्ड्स। फोल्ड, सॉरी, फोल्ड्स। फ्रंट भी कुछ आएगा, बट फ्रंट यहाँ नहीं आएगा। फ्रंट भी होता है, जब हम विंड विंड करेंगे तब फ्रंट आएगा। हम्म। ठीक है। 40 डिग्री पे ज्यादा प्रोमिनेंट है बिकॉज फ्रंट है वहाँ पे, करेक्शन, ब्रेक है वहाँ पे, एंड जेट स्ट्रीम मिलती है वहाँ पे, और जम्मू हम्म। कश्मीर में मिलता है विंटर्स पे, क्योंकि पोलार एयर इंकर्जन होता है। हम्म। हाँ, ये सारी पॉइंट्स हमें याद रखनी है अच्छे से। पोलार, एक्चुअली पोलार ट्रोपोपॉज मिलता है कश्मीर पे, एंड हम्म। पोलार फ्रंट जेट स्ट्रीम कहाँ मिलती है? सर्दर्न एंड पे मिलती है। सर्दर्न एंड ऑफ व्हाट? सर्दर्न एंड ऑफ पोलार ट्रोपोपॉज। पूरा जेट स्ट्रीम। या पोलार फ्रंट जेट स्ट्रीम, ये पॉइंट है। पोलार हम्म। front jet stream is found at the southern end of polar tropopause. यहाँ से ही क्वेश्चन उठाते हैं वो लोग, समझ रहे हो ना? तो फिर जम्मू एंड कश्मीर आया तो क्या होगा सर? पोलार ट्रोपोपॉज। पोलर ट्रोपोपॉज, बट जम्मू एंड कश्मीर सदर्न एंड में आएगा ना फिर पोलर ट्रोपोपॉज के? नहीं नहीं, पोलार जेट स्ट्रीम मिलती है सर्दर्न एंड पे, वो अलग है, जम्मू कश्मीर से अच्छा। रिलेटेड नहीं है वो। सो ओके। हमें इतना तो पता ही है कि ब्रेक्स पे हमें जेट स्ट्रीम मिलती है,
अभी पोलार ट्रोपोपॉज हमें जेट स्ट्रीम दे रहा है, बट जो जेट स्ट्रीम पोलार ट्रोपोपॉज में होती है उसको पोलार फ्रंट जेट स्ट्रीम बोलते हैं। अच्छा। समझ गए? तो जेट स्ट्रीम के भी अलग अलग टाइप्स हैं। ये वो पोलर ट्रोपोपॉज में हो रही है इसलिए उसको पोलर फ्रंट फ्रंट जेट जेट स्ट्रीम स्ट्रीम। बोलते हैं, और ये कहाँ मिलती है? साउथ एंड पे सदर्न मिलती एंड, है। सदर्न एंड सदर्न ऑफ एंड पोलर ऑफ पोलार ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, यस। ओके। सदर्न एंड ऑफ पोलर ट्रोपोपॉज मतलब लैटिट्यूड 45 डिग्री टू 60 डिग्री के साउथ साइड पे नीचे। साउथ साइड पे मिलेगा, वेरी गुड। सदर्न एंड। ठीक है। एंड देखा जाए ना, तो ये सिर्फ नॉर्थ में नहीं होता है, सेम चीज साउथ में भी होगी, क्योंकि 45 डिग्री नॉर्थ में भी मिलेगा लैटिट्यूड, एंड 45 डिग्री साउथ में भी मिलेगा लैटिट्यूड। हाँ, ठीक है। तो दोनों साइड पे होता है क्या ये? दोनों साइड पे होगा तो एवरीथिंग। दोनों साइड पे सब वैसे ही होगा ना, हम्म प्रेशर वगैरह? हम्म। ये लोग बताते एक के बारे में ही है, एंड बोलते हैं एवरीथिंग इज एज सेम एज इन द सदर्न एंड ऑल्सो, ऐसे बोल के खत्म कर देता है। अच्छा, हम्म। मतलब ये चीजें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। बट हम लोग सदर्न हेमिस्फेयर से फ्लाइट लेते ही नहीं है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से ही लेते हैं बड़ा सब पोलर वाला फ्लाइट्स। अच्छा। तो हमें सदर्न का कुछ लेना देना होता ही नहीं है, इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ते उसको। अच्छा। ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज समझ गए, इक्वेटर से 30 टू 35, 35 टू 40, एंड इंडिया में 16 टू 16 एल्टीट्यूड पे मिलता है, एंड उसका एचपीए लेवल क्या है? 100 एचपीए। 100। सो देखोगे तो पोलार ट्रोपोपॉज का हाइट कम है, बिकॉज वहाँ प्रेशर ज्यादा है, देखिए 300 एचपीए। हाँ, एंड ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज का हाइट ज्यादा है क्योंकि प्रेशर कम है वहाँ पे। तो अभी ट्रॉपिकल का 30। कम है ना? प्रेशर कम है तो हाइट ज्यादा हो गई ना। हम्म। प्रेशर कम, हाइट ज्यादा। हाँ, मिडल ट्रोपोपॉज। एक मिनट सर। हाँ बोलो। Middle tropopause. It occurs near 200 hectopascals सो between polar and 200 tropical इज इन tropopause. बिटवीन 300 एंड 100। 100 and 300, हाँ। इसीलिए इसको मिडल बोलते हैं, बिकॉज ये पोलार एंड ट्रॉपिकल के बीच में आता हम्म। In है। India, it is at about 11.5 kilometers. टेम्परेचर क्या मिलता है वहां पे? -45 डिग्रीज। 45 degree Celsius. विंटर्स में कहाँ तक मिल सकता है? 23 डिग्री नॉर्थ पे मिल जाता है हम लोग को। विंटर्स In में एकदम winters, नीचे it आ may जाता be at 23 degree north. है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 degree north. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाया था ना? हाँ बराबर, 23 degree north. वो 23 पॉइंट्स कुछ तो था ना, 5 फाइव 6 क्या फाइव था? 23.5। हाँ, तो कौन मतलब सी जेट थोड़ा स्ट्रीम? सा नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। थोड़ा सा नीचे है, वो लाइन से थोड़ा नीचे है, वेरी गुड। सब ट्रॉप कौन सी जेट स्ट्रीम मिलती है मिडिल ट्रोपोपॉज में? सब ट्रॉपिकल सब जेट स्ट्रीम। ट्रॉपिकल, क्योंकि मिडिल ट्रोपोपॉज ट्रॉपिक्स के आसपास ही आता है, इसीलिए ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम मिडिल ट्रोपोपॉज में मिलेगी, ऐसे लिंक करना है। ट्रॉपिक आप समझ गए हो, 23.5 नॉर्थ एंड साउथ को ट्रॉपिक्स बोलते हैं। ट्रॉपिक्स में बहुत अच्छा वेदर होता है एक्चुअली, ना तो ज्यादा गर्म ना इसमें ज्यादा ठंडा। इसमें जेट स्ट्रीम नहीं होता ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज में? ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज में शायद नहीं होता है, मिडिल में होता है, सिर्फ मिडिल एंड में पोलार और में होता है। पोलर में होता है? या बेसिकली हायर लैटिट्यूड्स में होता है। ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज इक्वेटर से स्टार्ट होता है, तो वहां जेट स्ट्रीम नहीं मिलती, समझे? अच्छा। बट बाय द टाइम यू रीच 20-25 डिग्री लैटिट्यूड, जेट स्ट्रीम मिलना शुरू हो जाता है। पहले मिलती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, उसके बाद मिलती है पोलार फ्रंट जेट स्ट्रीम। समझ गए? सब ट्रॉपिकल पोलर। हाँ। वेरी गुड। फिर ट्रोपोपॉज का इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज द मैक्सिमम हाइट टू विच क्लाउड्स में रीच वेरी इंपॉर्टेंट जेट पॉइंट। स्ट्रीम।
क्लाउड्स का मैक्सिमम हाइट ट्रोपोपॉज तक ही होता है, ट्रोपोपॉज के ऊपर क्लाउड्स नहीं बनते हैं। ओके, तो क्लाउड हाइट वेरी निकालनी है तो जस्ट वहां पे आपको हेल्प मिलती है। ट्रोपोपॉज का हाइट निकालने का। हम्म, इट फिर इज द जेट मैक्सिमम स्ट्रीम्स। It is the maximum height to which clouds may reach. Jet streams, maximum wind speeds, and clear air turbulence occur just below it. वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर एयर टर्बुलेंस एक अच्छा फंडा है विच वी विल स्टडी और याद रखना है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रोपोपॉज, क्लाउड्स का मैक्सिमम हाइट ट्रोपोपॉज पे होता है। जेट स्ट्रीम्स ट्रोपोपॉज, मैक्सिमम विंड स्पीड्स एंड क्लियर एयर होती है। टर्बुलेंस जस्ट बिलो ट्रोपोपॉज। ओके। समझ गए? हम्म। वेरी गुड। चलो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस पूछता हूँ। पूछो। इन ISA एटमॉस्फेयर, आंसर्स कहीं हम्म। मत देखना, फिलहाल मुझे देख के आंसर हम्म। देने की कोशिश करो आप। In ISA atmosphere, the tropopause occurs at a height of 8 to 10 kilometers, 11 kilometers, 16 to 18 kilometers. 16 to 18. ISA atmosphere, the tropopause occurs at a height of 8 to 10, 11, 16 to 18. 16 to 18, right? 16 to 18 एक्चुअली इक्वेटर के ऊपर का वैल्यू है। इक्वेटर के ऊपर, पोल्स के ऊपर 8 ISA to का 10. वैल्यू, हाँ हाँ, ISA का क्या I वैल्यू guess है? 11. 11। यस, ध्यान से आंसर देना है आपको। इसका आंसर ढूंढना है आपको, फटाफट ढूंढो इसका अच्छा, आंसर। मतलब ट्रोपोपॉज में ही होगा, टेक्स्ट बुक में ढूंढो फटाफट। ट्रोपोपॉज में अगर नहीं है तो ISA में होगा, दोनों में से एक में होगा। ट्रोपोपॉज में तो नहीं था क्योंकि अभी तो हम लोग ने किया था। ओके, इधर लिखा है लैप्स रेट अप टू 11 किलोमीटर्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इनडायरेक्टली लिखा है वहां पे, समझे? हम्म। व्हाट मेड यू गिव द आंसर 16 to 18? आई थॉट कि आई से बोला तो नॉर्मल होगा, फिर बाद में सोचा कि इक्वेटर पे अगर 16 to 18 और पोल्स पे अगर 8 to 10 तो बीच वाला आंसर है। बीच वाला ही, ISA बीच वाला ही लेगा क्योंकि उसको एवरेज समझा जाता है। एंड हमने एक चीज हम्म। देखी है कि लैप्स रेट ट्रोपोपॉज पे खत्म होता है, एंड ट्रोपोपॉज एंड लैप्स रेट 11 किलोमीटर पे से- खत्म होता है। सो 11 इज हाँ। ट्रोपोपॉज। ISA के ओके। लिए। यस, ISA के लिए। अपने नोट्स जो मैंने बोले हैं देखने, वो चेक करो, क्वेश्चन नंबर 43। नंबर 43। इन आई से, हाँ देखा। सही लिखा आंसर? हाँ। चलो एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। डोंट लुक एनीवेयर, जस्ट लिसन टू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव द आंसर। The knowledge of height of tropopause is important for a pilot because option A, because weather is mainly confined up to this level. Option B, clouds rarely reach up to this height due to jet streams. Option C, stratosphere starts at this height where all solar radiations are absorbed. Pilot के बी। लिए क्यों जरूरी है? A is weather is व्हाट mainly इज ए? A is weather is mainly confined up to this level. B, एंड वी आर clouds. टॉकिंग अबाउट Why the knowledge of ट्रोपोस्फियर, height राइट? of, no no no, why the knowledge of height of tropopause is important to the pilot? ए ए। Weather is mainly confined up to this level. Clouds यस। rarely reach up to this height due to jet streams. Stratosphere starts at this height where all solar radiation is absorbed. सर Pilot, ए लग रहा है, लेकिन बी का तो इधर ही अभी तो पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रोपोपॉज। तो बी क्या बोल रहा है? क्लाउड्स rarely reach up to this height. सो इट्स ए। Rarely नहीं है क्लाउड्स, क्लाउड्स तो मैक्सिमम हाइट है, rarely नहीं हाँ, है। तो ए ए। ए, करेक्ट करेक्ट। तो आप आंसर देने में, नेक्स्ट आंसर पूछूंगा क्वेश्चन, उसमें घाई नहीं करना है, ठीक है? हाँ।
सोच समझ के डिस्कस करके मुझसे एक करेक्ट आंसर देना है। घाई में करेक्ट भी नहीं देना है और गलत भी नहीं देना है। एनालाइज करके ही देना है, गलत हो या करेक्ट हो। ठीक है? देखो अपने क्वेश्चन नंबर 42 चेक करो। हम्म, देखा। हम्म। अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से इसका आंसर देना है। हम्म, नेगेटिव लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर इज ऑप्शन ए आइसोथर्मल रेट, ऑप्शन बी, इन्वर्जन। सुनो तो सही, मैंने बोला ना गाई में आंसर नहीं देना। अच्छा। ऑप्शन बी टेम्परेचर राइज विथ लोअरिंग हाइट, ऑप्शन सी टेम्परेचर राइज विथ हाइट, ऑप्शन डी टेम्परेचर फॉल विथ हाइट। नेगेटिव लैप्स रेट सी, ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर इज, राइज विद हाइट। आर यू श्योर? यस। कहीं देख के बता रहे हो कि खुद से बता रहे हो? नहीं नहीं, खुद से। वेरी गुड। चेक करो क्वेश्चन नंबर 38 करेक्ट है कि नहीं। 38 टेम्परेचर राइज विद हाइट बराबर था। हम्म। अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से उसका आंसर देना है। रेडी? यप। Lapse rate in the troposphere is produced by dash evaporation, rising air, terrestrial radiation, solar radiation. राइजिंग एयर। Yes, very good. हमने जस्ट पढ़ा था। करेक्ट? चेक करो क्वेश्चन नंबर 36। आधा क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर राइजिंग एयर लिखा है। करेक्ट? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, कहीं मत देखो। अवॉइड लुकिंग एल्सवेयर ऑन द क्वेश्चन शीट ऑल्सो। Tropical ना ना। tropopause extends from the equator to latitude 35 to 40 degrees. Over India, it is at dash 20 to 21 kilometers, 14 to 15 kilometers, 16 to 16.5 kilometers. 16 to 16.5 किलोमीटर। Correct. अभी जस्ट हमने पढ़ा है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 35 क्विकली चेक। वेरी गुड। सोच के दिया या घाई में दिया आंसर? सोच के सोच के। वेरी गुड। A very interesting question coming your way. सर आपने क्या बोला था? इफ द प्रेशर इज लो देन द हाइट इज मोर, राइट? या तो वही मैंने इधर अप्लाई किया, क्योंकि ट्रॉपिकल का ही सबसे कम है ना, 100। हम्म, अप्लाई भी किया और अभी अभी हमने वैल्यू भी देखी पढ़ा थी भी ना, था। पढ़ा भी था। ये जो वैल्यूज हैं ये सब रटने वाली हैं, बट लॉजिक भी काम ही आता है यहाँ पे। मैंने बोला ना, जो भी इंडिया, जहाँ पे भी इंडिया आता है वो चीज तो रट लेनी है आपको, हम्म, बट लॉजिक सही था आपका। अच्छा, एक एक कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछता हूँ आपको मैं। पूछो ठीक है? पूछो। ध्यान से सुनना है क्वेश्चन। आप यहाँ वहाँ देख के आंसर बता रहे हो क्या? नहीं, मैं घड़ी देख रहा हूँ मेरा। हाँ ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना, यहाँ वहाँ नहीं देख के बताओगे तो मजा भी आएगा। बाद में तो देखना ही है अपन को, ठीक है। सही हो या गलत हो। इन एक्चुअल एटमोसफेयर में द लैप्स रेट कुड बी, ओके, क्या होगा लैप्स रेट को एक्चुअल एटमोसफेयर में? नंबर वन, इट कैन अज्यूम एनी वैल्यू। नंबर टू, इट फॉल्स अप टू 8 kilometers. नंबर थ्री, इट राइजेस अप टू 50 kilometers. इट फॉल्स अप टू 8 किलोमीटर।
फिर से मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, सोच समझ के आंसर देना है। In actual atmosphere, the lapse rate could assume any value, fall up to 8 kilometers, rise up to 50 kilometers. अभी जो हमने फॉल अप टू 8 किलोमीटर्स देखा था वो तो पोलर रीजन पे देखा था ना, हाँ, वो दैट वाज रिलेटेड टू पोलर रीजन. and what is the first option? Assume any value and seas rise up to 50. यस ए है, क्योंकि ऐसे किधर 50 तो मैंने लिखा नहीं, देखा नहीं था लिखा हुआ। जो हमने ए ए। लैप्स रेट पढ़ी है ना 1.98 डिग्रीज पर 1000 फीट एंड हम्म। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, दैट इज आईएसए वैल्यू, स्टैंडर्ड आईएसए वैल्यू. बट हाँ। एक्चुअल वैल्यू तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, सरफेस कंडीशंस पे, एक्सेट्रा. हम्म। Warm air, सो ए इज cold द air, ऑप्शन, राइट? A is the option. It assumes any value. Check question number 34. Read out the sentence. अच्छा, मैंने वाली। Okay. तो देखो, दे आर प्लेइंग विथ यू. उनको पता है आपने फॉल अप टू 8 किलोमीटर पढ़ा है. हम्म। सो दे आर प्लेइंग विथ यू. अगर घाई घाई में आंसर करोगे तो आप 8 किलोमीटर ही डालोगे. हाँ। इसीलिए घाई में कोई आंसर नहीं देना है, भले आता हो नहीं आता हो. उसको क्रॉस चेक करना है, क्वेश्चन को समझना है, ऑप्शंस को समझना है. नहीं तो बच्चे लोग 5 से 10 मार्क्स ऐसे वेस्ट कर देते हैं इजी पेपर्स में भी, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ट्रिकी होते हैं. आई एम गिविंग यू टेक्निक्स, ओके. Yep. एक और क्वेश्चन है सिमिलर टू लैप्स रेट ओनली. द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विथ हाइट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल रेट, इन्वर्जन रेट और The लैप्स रेट. rate of the rate of फॉल ऑफ टेम्परेचर fall of temperature विथ as हाइट. height विथ हाइट with height. इट्स कॉल्ड एज आइसोथर्मल रेट, इन्वर्जन रेट और लैप्स रेट. Lapse rate. Are you sure? I don't see you Yes. thinking. I don't see you thinking. Yes. I can Yes. only see you jumping on the answers. No. No. Think सोच about समझ के all दे रहा three था। options. Isothermal is constant where nothing happens. Inversion is negative lapse rate. That is So increasing it's in lapse rate. temperature with height. Yes, lapse rate. Good. ऐसे आपको डिड्यूस करना है, क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ. जब सेम क्वेश्चन तीसरी चौथी बार देखोगे तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो. समझ गए? हम्म। अगर क्वेश्चन डिट्टो रिपीट होता है तो आपको पता आंसर क्या है. 33 का आंसर करेक्ट है आपका. वेरी गुड. ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, जब हम मासी के घर मिले थे. हाफ ऑफ द एटमोस्फेरिक एयर मास इज कंटेन्ड बिलो डैश फीट. 20,000 फीट, 15,000 फीट, 10,000 फीट. याद है कुछ? गैस करो इसका आंसर. नहीं याद सर। ये ढूंढो, टेक्स्ट बुक खोलो, पेज नंबर 1 से चेक करो फटाफट. क्वेश्चन के कीवर्ड्स है हाफ ऑफ द एटमोस्फेरिक एयर मास इज कंटेन्ड बिलो डैश फीट. एयर मास, टोटल एयर, half of the total air and its mass. पेज नंबर 1 पे है क्या? नहीं। ओके, पेज नंबर 2, नहीं। पेज नंबर 3. वो सब ओजोन वगैरह वाला उस पर भी नहीं है। नहीं है सर। होगा होगा, ऐसे कैसे नहीं है बोल रहे हो?
पेज नंबर 4 चेक करो. नहीं है. पेज नंबर 4 पे हेडिंग क्या दिया है? Thermal structure of atmosphere. ऊपर ऊपर टॉप हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग. Temperature falls with height. क्या बोल रहे हो आप? पेज नंबर 4 ये है ना जो थर्मल स्ट्रक्चर वाला है. हाँ हाँ, तो उसमें हेडिंग किधर है? सीधा टेम्परेचर फॉल से चालू होता है मेरा. हाँ आपके सॉरी, उस पर पेज लिखा कुछ पेज हेडिंग. नंबर 3 चेक करो. पेज नंबर 3 में देखो कुछ दिया है. चेक द स्क्रीन. हाँ देखा. Due to the gravitational attraction, the approximate distribution of air mass with height is half of the air mass is below 6 kilometers. दिया तो है यहाँ पे. So half of the 6 kilometers. So to convert kilometers into feet. उस दिन देखा था ना, 1000 1 किलोमीटर इज 3000. हाउ Wait, मच? let me check. 3200 या 800? देखो मैंने बताया था 800, फिर आपने चेक करके बताया था सर 3283 आई गेस. दिखा कितना होता है. रुको, गूगल पे चेक करता है. 8 It's 3280. 3280 1 kilometer. So 6 kilometers is 1960. 19,060 680. हाँ. तो ये टेक्स्ट बुक में है ना, जहाँ हाफ लिखा है ना उसके आगे पेन से फीट में आंसर लिख दो. किलोमीटर लिखा है ना 6 किलोमीटर, हाँ. वहां पे ब्रैकेट में फीट का वैल्यू लिख दो. अच्छा, कितना है इसका? कितना है? 19,680 फीट. फीट. अभी क्वेश्चन मैं बताता हूँ फिर से आपको. किलोमीटर इज इक्वल टू 3,280, राइट? 1 किलोमीटर इज. या 3283 होता है मेरे हिसाब से, ओके. मोर एक्यूरेट. 80. तो क्वेश्चन क्या था? हाफ ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर मास इज कंटेन्ड बिलो डैश 20,000 फीट, 20,000 फीट. 15,000 फीट और 10,000 फीट. 20,000. करेक्ट. अभी आपने तो बोला सर नहीं है. क्यों? आपने ये कीवर्ड पे तो फोकस डायरेक्ट नहीं किया. था सर, उधर किलोमीटर्स और फीट में खेल रहे हैं ये लोग. हाँ ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है. एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर मास आपने मिस कर दिया था. वो कम से लेकिन कम ये लोग, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? अगर पूरा दुनिया फीट के साथ चल रहा है तो ये लोग में मस्ती क्या है किलोमीटर डालने के लिए? नहीं, फीट में भी दिया है ये लोग ने, कोई बात नहीं ना. लेकिन यूएसए में तो हम लोग सीख के आए, वो सब फीट में सीख के आए सर. किलोमीटर का उधर से नाम भी नहीं आता था यूएसए में. प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हमें कन्वर्जन आ गया ना. हाँ. 3200 बस. अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन मत करो आप, ठीक है? जैसे दिया है वैसा पढ़ो. क्वेश्चन करने जाएंगे ना तो 2-4 मार्क्स कम हो जाएंगे हमारे. 3280.84 करेक्ट है तुम्हारा. 3281 समझ लेते हैं. ठीक है, याद रखो ये फेवर. लिख लिया है कहीं पर कन्वर्जन? लिख लिया, बार बुक बार पे लिख गूगल लिया. चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नोटबुक पे लिख लिया. तो टेक्स्ट वेरी बुक पे लिख लिया. वेरी गुड, वेरी गुड.
In ISA, the mean sea level temperature is 15 degrees Celsius, 10 degrees Celsius, 25 degrees Celsius. 15. Correct. Very good. Okay. Question number. Acha. The temperature in ISA at 17 kilometers is. ठीक है? ISA value के हिसाब से at 17 kilometer the temperature is. Option A. Options नहीं दूंगा, आप मेरे को आंसर निकाल के दो इसका. अभी ISA means 15 और 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्रीज का ये होता है, Very good. ड्रॉप होता है. Very good. So at what feet you want? I want at 17 kilometers, not feet but kilometers. So 17 times 6.5 is 110. So 110 minus 15. Sorry, 15 minus 105. 110.5. It's minus 95.5. माइनस 95.5. अभी मैं आपको ऑप्शंस हाँ. देता हूँ, ठीक है? ऑप्शंस है माइनस 56.5 डिग्री सेल्सियस, माइनस 65.5 डिग्री सेल्सियस, माइनस 35.5 डिग्री सेल्सियस. माइनस क्या? माइनस 56.5, माइनस 65.5, माइनस 35.5. क्या आंसर बोलूं? 65. That's the nearest. नहीं, यहाँ पे नियरेस्ट नहीं आएगा बिकॉज आपको 17 किलोमीटर्स पे पूछा है, लेकिन लैप्स रेट तो सिर्फ 11 किलोमीटर्स तक जाती है ना बॉस. तो यहाँ पे सिर्फ 11 तक कैलकुलेट करना है आपको. उसके बाद Okay, so 11 times 6.5, 71, and 15 minus 71 is minus 56. ये फिर ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपने. लैप्स रेट 17 तक क्यों की, आपको ध्यान रखना चाहिए था कि 11 तक ही होता है आईएसए के हिसाब से, है ना? इधर ही है ना, टेक्स्ट बुक में लिखा है. हाँ, इधर ही लिखा. हाँ, है ना? याद which रहेगा is ना ट्रिक. 36,000 feet. हाँ. हाँ. और एग्जाम में और कंफ्यूज करने के लिए आपको आपका 96 वाला आंसर भी डाल देते हैं ये लोग ऑप्शंस में. ठीक है. तो ध्यान रखना इस चीज का. हाँ. आईएसए के हिसाब से आफ्टर 11 किलोमीटर्स काफी हद तक आपका टेम्परेचर 56.5 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, बाद में वापस बढ़ने लगता है. ठीक है. अभी हमने पहले के कुछ 14-15 क्वेश्चंस किए थे और हमने ट्रोपोस्फियर ट्रोपोपॉज के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड आईएसए के भी कर लिए हैं. हमारा बस ये चैप्टर थोड़ा सा बचा है जो हम लोग नेक्स्ट एकदम थोड़ा सेशन सा. में, हाँ, नेक्स्ट सेशन में फिनिश करेंगे. ठीक है. ओके तो सर. मैं चाहता हूँ कि आप आज और कल के क्लास के बीच में ये पूरा चैप्टर एक बार रीड कर लो. आधा तो हमने साथ में रीड कर ही लिया है. ठीक है. आईएसए वैल्यूज याद करनी है आपको एंड आपको दूसरे स्फीयर्स रीड करने हैं, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने हैं और जेट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर देखना है. ठीक है. जेट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर मतलब यही चैप्टर का है ना सब कुछ? हाँ, सब यही चैप्टर का है. तो आधे से ज्यादा आपको आता है, थोड़ा ही रीड करना है. सो डोंट बी लेजी, रीड इट वंस. ओके. यस सर. कभी तक हो जाएगी रीडिंग? शाम तक कर दूंगा. कितने बजे तक? 9-10 बजे तक कर दूंगा. ठीक है, मैं कॉल करूंगा आपको कंफर्मेशन के ठीक है. लिए. ठीक ठीक है. है. सी यू सर. सो बाय, टेक केयर. अरे रुको. सो we have studied the first chapter, the name of which is atmosphere. And atmosphere
के बारे में हमने कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एक बार पहले देखा, फिर हमने लेयर्स एंड टेम्परेचर वेरिएशन देखा है, एंड फिर हमने ट्रोपोस्फेयर एंड ट्रोपोपॉज तक देखा है। तो ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, वहां से आपको मेनली रीड करना है। आईएसए भी ऑलमोस्ट हमने देख लिया है। आईएसए डेविएशन आपको एक बार देखना है और जेएसए देखना है। देखा जाए तो बहुत छोटा है और बहुत थोड़ा बचा है हमारा, ठीक है। ठीक अम, है। आप चाहो तो हम ये आज रात को भी फिनिश कर सकते हैं या कल सुबह कर नहीं सकते सर, हैं। कल ही करते हैं। हाँ, क्लास के टाइमिंग के हिसाब से ही जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। कल 11 बजे मिलेंगे। कॉल करने की जरूरत नहीं हाँ, पड़नी चाहिए एक दूसरे को। नहीं मीटिंग नहीं सर। रेडी रहेगी, आप रेडी रह जाना, मीटिंग रेडी हो जाएगी। अगर मैं नहीं मीटिंग ऑन किया है तो आपको दिखाएगा वेटिंग फॉर द होस्ट टू स्टार्ट, अच्छा। ठीक है। बट मेरे को नोटिफिकेशन आएगा कि शशांक हैज ज्वाइन, तब मैं स्टार्ट करूंगा, समझे। ठीक है। तो दोनों में से एक होगा, या तो मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा या तुम मेरे लिए वेट करोगे, ठीक है सर। ठीक है। आपने स्केड्यूल का Yep. स्क्रीनशॉट ले लिया है, टाइम टेबल का। नहीं सर, सेंड कर दो ना मुझे, बहुत छोटा दिख रहा था। एक बार ट्राई करो, नहीं तो मैं सेंड करूंगा। मैं इसको जूम करता हूँ, एक सेकेंड। तो वही पेज खुला है। वेट वेट यार, come on। मिल गया। थैंक यू। विजिबल है। हाँ हाँ, विजिबल है। चलो ठीक है, वेल डन। ये जो शुरू के 3-4 टॉपिक्स हैं बहुत इजी, बहुत लॉजिकल हैं। इस पे हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, मेन क्वेश्चंस यहाँ से ही आएंगे, एंड इसके बेसिस पे हमारे आगे के कॉन्सेप्ट्स हमें इजीली समझ आएंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलो, सी यू टुमारो। मॉम को अच्छे से रिस्पेक्टफुली एक अपडेट दे देना कहीं भी जाने से पहले कि आज तुमने कितना पढ़ा है, ठीक है। हाँ। उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, पापा को बताएंगे वो भी अच्छा लगेगा, समझ रहे हैं, दिल सपोर्ट यू मोर। यप। चलो ठीक है, सी यू ठीक है टुमारो सर, बाय 11 बाय, o'clock। टेक केयर। बाय बाय बाय।